Hello, my dear friends, and I welcome you with the new video. This is class 10th video. It is based on social studies. So today we are going to discuss moral test paper of social science or social studies. So आज ਅਸੀਂ 10वीं class ਦਾ moral test paper SST ਦਾ जो है डिस्कस ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ 40 ਕੁਐਸਚਨਸ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣੇ ਹਨ ਤੇ 40 ਕੁਐਸਚਨਸ ਜੋ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਮਤਲਬ 40 ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਓਵਰਆਲ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਏ ਹੋ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, तो ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, which is the smallest state of India in terms of area, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ in terms of area ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਖੇਤਰਫਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਗੋਆ, ਸੈਕੰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਚੇਨਈ, थर्ड लिखा है सिक्किम एंड फोर्थ लास्ट ऑप्शन जो है उत्तर प्रदेश। राइट आंसर जो है वो है गोवा, ठीक है। गोवा की है सब तो छोटा जड़ा है राज्य है, छोटी स्टेट है। Let us move to the next question. When was this a favorite question of mine and examiner point of view, ये काफी important question है आपके लिए। When was the present Punjab created? आज दा जो पंजाब है कदों बनिया सीगा? A option is 1st October 1947, B option 2nd January 1967, C option is 1st November 1966 and the last option is 26th January 1950. So the right answer here is C option 1st November 1966, ठीक है। तो इस दिन पंजाब जो है वो बनया सीगा 1 नवंबर 1966 ईस्वी दे विच जो पंजाब है वो बनया सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the length of the land boundaries of India? A option is 15,200 kilometer, B option is 15,700 kilometer, C option is 16,900 kilometer and D option is 13,009 kilometer. So the right answer is A option 15,200 kilometer. Okay, so 15,200 किलोमीटर जो है लंबाई है लैंड बाउंड्रीज दी भारत देश दे। Now let's move to the next question. What is the capital of Mizoram? Mizoram की कैपिटल की है? A option is Gangtok, B option Imphal, C option is Aizawl and D option is Ranchi. So the right answer is Aizawl. C option is the right answer. Aizawl जो है क्या है, कैपिटल है मिजोरम की। Now let's move to the next question. Fifth question is what is the length of Brahmaputra Plains? Brahmaputra Plains की जो लेंथ है वो हमें बतानी है क्या है। A option is 670 kilometer, B option is 640 kilometer, C option here is 780 kilometer and D option is 870 kilometer. So the right answer here is 640 kilometer जो है 640 kilometer is the length of the Brahmaputra Plains. Brahmaputra Plains की जो लंबाई है वो कितनी है, 640 किलोमीटर है, ठीक है। Now let's move to the next question. नारकोदम आइलैंड्स जो है वो कहाँ पे हैं? It is located in dash. फर्स्ट ऑप्शन जो है वो लिखा हुआ है अरेबियन सी, नेक्स्ट राय प्लेन्स, थर्ड इज बे ऑफ बंगाल एंड लास्ट इज दक्कन प्लेट्यू लिखा हुआ है। तो दक्कन प्लेट्यू भी नहीं हो सकता और ट्राई प्लान्स भी नहीं हो सकता, बचा हमारे पास अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। सो द राइट आंसर हियर इज सी ऑप्शन, दैट इज बे ऑफ बंगाल, ठीक है। सो हमारे पास जो Norcadam Islands हैं, they are located in Bay of Bengal. Now next question number 7. Question number 7 is
It was a technical fault. So let's start again. So the seventh question is monsoon winds reach western coast on dash and do heavy rainfall. So most monsoon winds, जो monsoon हवाएं हैं वो western coast के ऊपर पहुंच से बहुत सारी यहाँ पे बारिश जो है वो करती हैं. कब ये पहुंचती हैं? First option is 1st June, B option is 1st July, C option is 1st August, and D option is 1st November. So right answer here is 1st June. So 1st June को जो ये हवाएं हैं यहाँ पे पहुंचती हैं. ठीक है. सो राइट आंसर हियर इज फर्स्ट जो ऑप्शन है 1st जून को ये हमारे पहुंचते हैं. बहुत सारी बारिश जो है यहाँ पे वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर करती हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th वन. Nor'westers blow over. So nor'westers is a name of winds. So they blow over. A option is northern plains, B option southern plains, C option is eastern plains, and D option is none of these. So right answer is, you can guess from nor means north. So ये क्या है? ये हवाएं जो है northern plains के ऊपर जो है बहती हैं. Right answer here is A option, northern plains. Now let's move to the 9th question. Reasons of very लेस रेनफॉल, बहुत ज्यादा कम बारिश होती है यहाँ पे. ए ऑप्शन इलाहाबाद, बी ऑप्शन गुजरात, सी ऑप्शन इज जैसलमेर, एंड डी ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी. सो हियर द राइट आंसर इज, आई थिंक यहाँ पे टाइपिंग इशू है. यहाँ पे बी और सी आना था. बी एंड सी. ओके. सो दोनों पे गुजरात एंड जैसलमेर दोनों पे बारिश जो है कम होती है यहाँ पे. सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. बट जो वैल्यू है यहाँ पे ए की जगह यहाँ पे बी आना है. मतलब गुजरात एंड जैसलमेर बोथ आर द राइट आंसर्स. यहाँ पे दोनों में क्या है, बारिश जो है कम होती है. ठीक है. नेक्स्ट 10th क्वेश्चन इज इन डेक्कन प्लेट्यू देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ डैश इन द सॉइल. मिट्टी के अंदर शॉर्टेज, कमी होती है. किस चीज की कमी होती है? नाइट्रोजन, ह्यूमस, लाइमस्टोन, ऑल ऑफ दीज. सो किस चीज की कमी होती है वो हमें बताना है इसके अंदर. ऑप्शन जो है आपके पास डी, ये राइट आंसर है. ऑल ऑफ दीज. नाइट्रोजन की भी कमी होती है, ह्यूमस की भी, लाइमस्टोन की भी. ठीक है. तो राइट आंसर हियर इज जो है आपके पास वो है ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, एनुअल रेनफॉल इन डेसिडुअस फॉरेस्ट. सो एनुअल रेनफॉल जो है डेसिडुअस फॉरेस्ट के अंदर कितनी होती है? ए ऑप्शन इज 50 to 100 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन 1200 to 1500 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन इज 100 to 200 सेंटीमीटर, एंड डी ऑप्शन इज 150 to 500 सेंटीमीटर. ओके. सो द राइट आंसर हियर इज सी ऑप्शन, दैट इज 100 to 200 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन 12th, which is the first रिजर्व सेटअप इन कंट्री 1986. फर्स्ट रिजर्व सेटअप कब किया गया था भारत के अंदर? 1986 के अंदर. सो द राइट आंसर हियर इज नीलगिरी बायो रिजर्व. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नीलगिरी बायो रिजर्व. नीलगिरी बायो रिजर्व जो था पहला रिजर्व था जो कि हमारे भारत के अंदर, इंडिया के अंदर इसको सेटअप किया गया था 1986 के अंदर. नाउ ये आपका ज्योग्राफी का पार्ट कंप्लीट हो चुका है. अभी हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में. सो व्हाट इज इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन क्या होता है? ए ऑप्शन हियर इज डिक्रीज इन प्राइसेस, बी ऑप्शन इज इंक्रीज इन बिजनेस, एंड सी ऑप्शन राइज इन प्राइसेस. तो इन्फ्लेशन क्या होता है? रेट्स का बढ़ना, महंगाई का बढ़ना, मतलब जो प्राइसेस होते हैं कमोडिटीज के वो बढ़ जाना. सो द राइट आंसर हियर इज सी ऑप्शन, दैट इज राइज इन प्राइसेस. ओके. नेक्स्ट जो है आपकी अपनी वैल्यू बतानी है. इन्वेस्टमेंट जो है किसके इक्वल होती है? इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन. नेक्स्ट ग्रोस इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन, ग्रोस इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई जो है यहाँ पे लिखा हुआ है. तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिवीजन. ठीक है. सो राइट आंसर हियर इज ए ऑप्शन, दैट इज ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन जो है वो राइट आंसर है. बिल्कुल. नेक्स्ट इज 15th क्वेश्चन, मेन सोर्सेज ऑफ वाटर. सो मेन सोर्सेज जो है पानी के वो कौन से हैं? 15th क्वेश्चन देखिए. थर्मल पावर. मेन सोर्सेज ऑफ पावर, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए जो मेन सोर्सेज जो है पावर वो कौन से हैं? थर्मल पावर, न्यूक्लियर पावर, हाइड्रो पावर, ऑल ऑफ दीज. सो राइट आंसर हियर इज ऑल ऑफ दीज. सारे के सारे ही हैं. नेक्स्ट 16th क्वेश्चन इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मींस LIC जो है किससे बिलोंग करती है? ए ऑप्शन इज बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, बी ऑप्शन इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सी ऑप्शन इज कोऑपरेटिव बैंक्स, एंड डी ऑप्शन इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक. सो द राइट आंसर हियर इज बी ऑप्शन, दैट इज
नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी के बारे में, डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी इज कॉल्ड, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी हम उसको क्या कहते हैं? इज दिस कंजप्शन, इज दिस प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन? सो द राइट आंसर हियर इज ए, दैट इज कंजप्शन। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन, व्हाट इज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या होता है? दैट इज इट डिपेंड्स ऑन लॉस, it depends on income, it depends on profit, and D ऑप्शन लिखा हुआ है कि it depends on both B and C, के दोनों पे डिपेंड करता है, B पे भी एंड C पे। सो द राइट आंसर हियर इज D ऑप्शन, दैट डिपेंड्स ऑन बोथ B एंड C, मतलब इट डिपेंड्स ऑन इनकम एज वेल एज प्रॉफिट। ओके, तो यही है इंड्यूस्ड इनकम, सॉरी इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट that depends on income as well as profit. Okay, D option is the right answer. Now let's 19th question, let's see 19th question, that is public income has dash main aspects. public income के कितने aspects जो हैं वो होते हैं? A option is 2, B option is 3, C option is 4, and D option is 5. So the right answer here is B option, that is 3. So public income has 3 main aspects. Next 20th question is, what is the objective of fiscal policy? Fiscal policy के क्या objectives हैं? A option is economic development, B option is price stability, C option is economic equality, and D option is all of these. So the right answer here is all of these, सारे के सारे ही objectives हैं fiscal policy के। Okay, next what are the residents? So economic का part खत्म हो चुका है, यहाँ से 21st question से हम history start कर रहे हैं। So what are the residents of दोआब बारी called? बारी दोआब के जो residents होते हैं, वसनीक होते हैं लोग, उनको हम क्या कहते हैं? So the right answer is फर्स्ट ऑप्शन जो है हम देख लेते हैं, माजा, माझीज, मलहीज, मालवीज। सो राइट आंसर हियर इज माझीज, माझीज जो है हम उनको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22nd क्वेश्चन इज जहलम एंड रावलपिंडी जो है, ऐसे क्वेश्चन आपको और भी आ सकते हैं। सो आपने सारे के सारे दोआब जो है अच्छे तरीके से पढ़ लेने हैं। ये आपके आई थिंक 2 और 3 क्वेश्चंस भी हैं बुक के अंदर, दो आपके ऊपर बेस्ड ही हैं क्वेश्चंस। तो आपने सारे सिटीज, इंपॉर्टेंट सिटीज एंड कौन से दोआब हैं, जैसे बिस दोआब है, बारी दोआब है, चज दोआब है, तो एक इन दो रिवर्स को मिला के इनका नाम बनता है। तो आपने अच्छे तरीके से वो पढ़ लेना है, ठीक है। सो 22nd क्वेश्चन अभी हम पढ़ लेते। तो देखो क्या लिखा है, सिंह सागर दोआब है, ये रचना दोआब है, बिस्ट दोआब, या फिर नन ऑफ दीज, कोई भी नहीं है इसमें से। सो द राइट आंसर हियर इज A option, that is सिंध सागर दोआब। ओके, 22nd का आंसर जो है वो है ए ऑप्शन, दैट इज सिंध सागर दोआब। नेक्स्ट है खैबर पास के बारे में है। खैबर पास इज लोकेटेड इन डैश माउंटेन्स, किन पहाड़ियों में ये स्थित है खैबर पास जो है? ए ऑप्शन इज नॉर्थ ईस्ट, सेकंड ऑप्शन जो है आपके पास साउथ वेस्ट है, सी ऑप्शन जो है आपके पास नॉर्थ वेस्ट है, एंड डी ऑप्शन जो है ग्रेट हिमालयस है। सो राइट आंसर जो है सी ऑप्शन है, दैट इज नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में ये लोकेटेड, नॉर्थ वेस्ट माउंटेन्स के अंदर जो है खैबर पास आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट 24th क्वेश्चन इज, नेम द प्रोविंस ऑफ पंजाब वेयर एम्परर अकबर रूल्ड। जो बादशाह अकबर थे, उन्होंने किस प्रोविंस के ऊपर, पंजाब के किस प्रोविंस के ऊपर जो था वो रूल किया था, मतलब कि अपना राज किया था? सो ए ऑप्शन इज ब्यास, बी ऑप्शन इज पंजाब, सी ऑप्शन जो है यहाँ पे मुल्तान है, एंड डी ऑप्शन जो है आपके पास नन ऑफ दीज है। सो राइट आंसर हियर इज सी ऑप्शन, दैट इज मुल्तान। ठीक है, लाहौर एंड मुल्तान के अंदर उन्होंने रूल किया था। लाहौर भी आ सकता है, तो लाहौर एंड मुल्तान जो है दोनों ही राइट आंसर है। नेक्स्ट है सिकंदर लोधी रूल्ड ओवर। तो आपने जितने भी ये लोधी डायनेस्टी के राजे थे, तो आपने सबका ही टाइम जो है, टाइम पीरियड याद रखना है। क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं आपको। ए ऑप्शन हियर इज 1451 टू 1457, बी ऑप्शन इज 1519 टू 1657, सी ऑप्शन इज 1489 टू 1523, डी ऑप्शन इज 1489 टू 1519। ऑप्शन जो है ये दिया हुआ है आपके पास, 4 ऑप्शंस हैं। सो राइट आंसर हियर इज फॉर 25th क्वेश्चन, ये आपके पास डी ऑप्शन है, दैट इज 1489 टू 1519। ठीक है, नेक्स्ट है पुलाव एंड कोरमा वर द मोस्ट फेवरेट डिशेज। किन की फेवरेट डिशेज है पुलाव और कोरमा? सो ये आपके पास जो है
ऑप्शन दिए हुए हैं सिख, सेकंड ऑप्शन जो है मुस्लिम्स हैं, सी ऑप्शन जो दी हुई है हिंदूज, डी ऑप्शन दी है अमीर। द राइट आंसर हियर इज बी ऑप्शन, दैट इज मुस्लिम। ठीक है, मुस्लिम जो थे उनकी ये फेवरेट डिश थी पुलाव एंड कोरमा। नेक्स्ट 27th क्वेश्चन इज बाबर इन्वेडेड द पंजाब डैश टाइम्स ड्यूरिंग डैश एडी। ठीक है, तो कितनी बार हमला किया था उसने बाबर ने पंजाब के ऊपर, और कब किया था। ठीक है, और कब कब किया था वो आपने बताना है। यहाँ पे आपको ऑप्शंस में दिया हुआ है टाइम पीरियड कि कितने टाइम्स उसने हमला किया था, और साथ ही साथ टाइम पीरियड दिया हुआ है कि कब से लेके कब तक किया था उसने। तो फर्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हो 4 लिखा हुआ है 1456 टू 1489। नेक्स्ट जो दिया हुआ है आपको 5 लिखा हुआ है 1519 टू 1545। नेक्स्ट है फोर्थ ऑप्शन 1513 टू 1534। डी ऑप्शन दिया हुआ है 5 1519 टू 1526। सो द राइट आंसर जो है आपके पास वो डी ऑप्शन है, दैट इज he invaded the Punjab 5 times during 1519 to 1526 AD। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बाणी से लिखी है गुरु जी की। हमने गेस करना है कि किस गुरु ने ये बाणी जो है लिखी है। वार आसा was the बाणी ऑफ गुरु नानक देव जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु अर्जुन देव जी, एंड नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर हियर इज गुरु नानक देव जी। तो आपने जितनी बानियां आई हैं आपके हिस्ट्री के चैप्टर्स में, तो आपने 6 चैप्टर्स जो हैं आपके हिस्ट्री के सिलेबस के, उसके अच्छे तरीके से जो गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में जो लिखा हुआ है, गुरु अर्जुन देव जी के बारे में जो लिखा हुआ है, ठीक है, वो गुरु अमरदास जी के बारे में जो लिखा हुआ है चैप्टर्स के अंदर, वो अच्छे तरीके से आपने पढ़ लेना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 29th क्वेश्चन है पंडित डैश रिसाइटेड द हाइम्स ऑफ जो गुरु नानक देव जी। तो पंडित कौन थे जिन्होंने गुरु नानक देव जी को जो हाइम्स थे वो रिसाइट करवाए थे। पहला है गुरजस, गुरजस, बी ऑप्शन इज हरदयाल, सी ऑप्शन इज शेख, एंड लास्ट ऑप्शन है गुरदयाल। ठीक है, तो राइट आंसर जो है आपके कौन सा है, बी ऑप्शन, दैट इज हरदयाल। पंडित हरदयाल जो थे उन्होंने हाइम्स जो थे डिसाइड करवाए थे गुरु नानक देव जी को। ठीक है, नेक्स्ट 30th क्वेश्चन है वेयर वर जोगीज स्मैशिंग एशेस ऑन द बॉडीज। जोगीज जो थे कहाँ पे अपनी बॉडीज के ऊपर स्मैश कर रहे थे, मतलब ऐश लगा रहे थे, राख लगा रहे थे वो अपनी बॉडीज के ऊपर। तो पानीपत में थे, गया में, बनारस में, गोरखमाता के अंदर था। सो राइट आंसर हियर इज गोरखमाता, गोरखमाता के अंदर ये कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद इस जगह का नाम, क्वेश्चन आ सकता है गोरखमाता का नाम दूसरा क्या रखा गया। सो जोगी जो थे गुरु नानक देव जी से काफी प्रभावित हुए उनकी पर्सनैलिटी से, उस जगह का नाम जो था फिर नानक माता रख दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट हु अटर्ड द वर्ड्स ना को हिंदू ना को मुसलमान। सो किसने ये वर्ड्स कहे, यहाँ मिसिंग या लिखा हुआ था, ना को हिंदू ना कोई मुस्लिम। तो ये शब्द किसने कहे, गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, नन ऑफ दीज। राइट आंसर हियर इज गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी ने शब्द जो थे कहे थे, ना कोई हिंदू ना कोई मुस्लिम। नेक्स्ट है मैचिंग, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स बेस्ड आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए मैचिंग किस तरीके से दिए हुए हैं, करतारपुर लिखा हुआ है, लोधी खाना लिखा हुआ है, गॉड विष्णु, पंडित ब्रिजलाल, एंड मनबीर कुतुबुद्दीन यहाँ लिखा हुआ है, आगे गुरु नानक देव जी। उसके बाद लिखा हुआ है आपके पास पर्सियन लैंग्वेज, एंड सुल्तानपुर लिखा हुआ है, लॉर्ड जगन्नाथ लिखा हुआ है, एंड संस्कृत लिखा हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या क्या आता है। सो करतारपुर गुरु नानक देव जी उन्होंने अपना अंतिम समय वहां बिताया था। ठीक है, और उसके बाद अगर हम देखें तो पर्शियन का अगर देखें हम लोग तो अगर लोधी खाना है ना, लोधी खाना, तो लोधी खाना कहाँ पे था, भी सुल्तानपुर में था लोधी खाना। ठीक है, तो उसके बाद थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन लिखिए है गॉड विष्णु, तो ये लॉर्ड थे जगन्नाथ के। एंड उसके बाद फोर्थ ऑप्शन पंडित ब्रिजलाल जो थे संस्कृत पढ़ाते थे गुरु नानक देव जी को। एंड मनबीर कुतुबुद्दीन से उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज जो थी वो सीखी थी। ठीक है, सो राइट आंसर जो है इन मैचिंग के अकॉर्डिंग वो है ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मसंद सिस्टम जो है किससे बिलोंग करती है। ठीक है, मसंद सिस्टम सिखों से बिलोंग करती है। राइट आंसर इज 6, Masan system is related to 6. Next 34th question, गोइंदवाल is situated on the dash river। गोइंदवाल जो है वो कहाँ पे स्थित है, किस नदी के ऊपर स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन जो है आपके पास दी हुई है ब्यास, नेक्स्ट है चंबा, गोदावरी, सतलुज। राइट आंसर हियर इज ब्यास, ब्यास जो है राइट आंसर है कि गोदावरी नदी जो है वो ब्यास के, सॉरी गोइंदवाल जो है वो ब्यास नदी के ऊपर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट 35th क्वेश्चन, देयर आर डैश ककार। तो सिखों के कितने ककार होते हैं, यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट दिस क्वेश्चन। सो देयर आर 5 ककार्स ऑफ अ सिख। नेक्स्ट 36th क्वेश्चन इज व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पास्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान जो था देश का कब पास किया गया। तो 26 नवंबर 1900
हाँ जी, नवंबर 26 1949, ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। सो 26 नवंबर जो था दिन था, ठीक है, जिस दिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पास किया गया था 1949 को, एंड इसको लोगों के ऊपर जो था, मतलब इन्फोर्स कब किया गया, इसको लागू कब किया गया इसको, दैट वाज ऑन 26 जनवरी 1950। ओके, सो नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है कि फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजंस वर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट, किस अमेंडमेंट के द्वारा ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो थी वो रखी गई थी। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास सेकंड अमेंडमेंट, थर्ड बी ऑप्शन जो है आपके पास लिखी हुई है 43rd अमेंडमेंट, सी ऑप्शन इज 44th अमेंडमेंट, डी ऑप्शन जो है 42nd अमेंडमेंट है, ठीक है, एंड द राइट आंसर हियर इज 42nd अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट द्वारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी संविधान के अंदर लिखी गई थी, ऐड की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, हु अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर, होम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या फिर नन ऑफ दीज। सो द राइट आंसर हियर इज सी ऑप्शन, दैट इज प्रेसिडेंट। सो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट, हु डिसाइड वेदर द बिल इज एन ऑर्डनरी बिल और मनी बिल, कौन डिसाइड करता है कि जो बिल है वो ऑर्डनरी बिल है, साधारण बिल है या फिर वो मनी बिल है, स्पीकर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, नन ऑफ दीज। सो द राइट आंसर हियर इज स्पीकर। स्पीकर जो होते हैं वो तय करते हैं कि बिल जो है वो ऑर्डनरी बिल है या फिर वो मनी बिल है, ठीक है। द लास्ट ऑप्शन इज हाई कोर्ट के बारे में, हाईएस्ट कोर्ट के बारे में पूछा हुआ है कि हाईएस्ट कोर्ट जो है कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। सो राइट आंसर हियर इज सुप्रीम कोर्ट। Supreme Court is the highest court of justice, and this is the moral test paper of SST class 10th. I hope you like the video and the content that we are providing to you. Subscribe my channel if you haven't subscribed it, and share with your friends as much as you can. Thank you for watching. Stay tuned with the channel AP Impact Classes. Thanks for watching.